वेल हेलो एंड वेलकम टीम बेतार। मैं अब जैसे किसी को कह रही थी, अगर ये लॉकडाउन ज्यादा एक्सटेंड हुआ हम सब zombies बन जाएंगे। Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Nice What one. a start. Yes. Uh-huh. What a तो आप start. बताओ, since you are the zombie busters, so tell me the experience, all of you, Vineet, Ahana, Suchita, Joshi ji, what was the experience like? पूजा, हम लोगों ने तो एक्चुअली लॉकडाउन भी एक्सपीरियंस किया था ड्यूरिंग शूट। Oh, That's बिकॉज true. वायरल इन्फेक्शन शुरू हुआ और आधे लोग अपनी यूनिट के एक एक करके बीमार पड़ने शुरू हुए। सबसे पहले एक्टर्स में पहले जीतू की तबीयत खराब हुई और जीतू की तबीयत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बट स्टिल ही वो शूटिंग। रात को डॉक्टर के पास जीतू हॉस्पिटल में रहता था और उसके बाद सुबह शूट के लिए सेट पे एंड लिटरली हम सभी परेशान थे और हमें ये नहीं पता था कि ये हम लोगों पे भी आने वाला है। तो एक एक करके हम सारे मेरे बाद अंकुर भी कल। I did not get it. You are मैं तो सब- different. You are girls different. have strong immunity here. But I had So other literally people हम लोगों that ने was on my side. या हम लोगों ने लॉकडाउन भी एक्सपीरियंस किया, शूट बंद करनी पड़ी कुछ दिनों के लिए, लेकिन वापस आए तो फिर कंप्लीट किया और खुशी से कंप्लीट किया। तो हम लोग उम्मीद करते हैं ये लॉकडाउन भी ऐसे ही जल्दी निकले। सही में, और आप इस लॉकडाउन में बेताल दे रहे हैं। सो कमिंग टू यू आहना, आई मीन यू सेड दैट यू हैड अदर इश्यूज, बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस working here and wearing prosthetics and I think it was pretty fascinating. This is the first time I experienced prosthetics, and thanks to my profession, I feel that we are really lucky that we get to do so many different things. We get to live so many different lives. We get to experience so many different experiences. And I think that's such an important part. मुझे लगता है कि कभी-कभी I feel like very blessed that as actors हमें रोने का मौका भी मिलता है, हमें गुस्सा होने का मौका भी मिलता है, हमें खुश होने का मौका मिलता है, हमें इतने सारे इमोशंस फील करने का मौका मिलता है that as human beings जो frustration होती है वो हमारे काम के थ्रू निकल जाती है. And so I think like for me, like wearing prosthetics just made me feel like a different person altogether. I still remember जब मैंने पहली बार अपना prosthetics का टेस्ट किया था, my director didn't like that test. उनको वो prosthetics बिल्कुल पसंद नहीं आया. Then later on Millennial VFX की टीम headed by Rebecca Butterworth, जिन्होंने मेरा पूरा prosthetics किया है इस पूरे शो में और पूरे बेताल सबका किया है. जब उन्होंने मेरा पहला पैच लगाया, it was a great give and take because I could bounce off an idea to her because शो में मैं हेलमेट पहनती हूँ जिसकी बेल्ट यहाँ पर आती है. तो मैंने उनको बोला कि यार प्रोस्थेटिक्स का पैच इधर तक ही रखना, ज़्यादा नीचे करोगे तो उसके चांसेस है कि यहाँ से यहाँ तक फट जाएगा. सो पैट्रिक टुक दैट in a really good way because Patrick also was like हाँ ठीक है, हम लोगों को इतना ही रखना चाहिए पैच. So there were lots of things that were good feedback that they took from me, and then they took that feedback from Rebecca. और उन लोगों ने कुछ 60 patches बनाए थे. Every day she would stick the patch on, she would color the patch and it would take 2 hours for me to get ready. तो सबका call time मुझसे 2 घंटे बाद होता था. तो I had gotten so एक्ट्रेसेस का क्या होता है, सुबह आओ, मेकअप वैन में बैठो, खूबसूरत लगो, हेयर और मेकअप करो. यहाँ पर मैं आती थी और मैं सारा टाइम अपना प्रोस्थेटिक्स वैन में बिताती थी. सो आई गॉट सो यूज्ड टू स्मेलिंग सिलिकॉन, आई गॉट सो यूज्ड टू स्मेलिंग ग्लू, पेंट, स्प्रे, so many things that were happening on my face. And I think uska ek apna hi maza hota hai, and I really feel that as actors all of us should be able to experience this at least once in our life. It's a great experience. Yeah, so I think it was for me the most fantastic. Suchitra, I was watching a Bali Sagu video yesterday and I saw you there, and here we are, talking about you as Shaggy Ji, the commandant. Yes. So what was your experience? What made you say yes, and what was intriguing about your character? Number one, completely different from what I did with Bali Sagu. That was a video for the Dil Cheese. I'm sure you saw that one, right? Yeah. That was in my youth when I was 27 years old, rather 23 years old. Anyway, as far as Betal is concerned, I was called for an audition and I had to just do one scene with Parag Mehta casting. And it was the first time I had met this casting director. And that went really well. And then the next thing I knew is that I got a call to meet Patrick and Nikhil, and do a test for them.
what really intrigued me about the character is when they described Tyagi to me. They said that she has a very nice graph from the beginning to the end, and boy, did she have a graph! Not only in the look and in the the way that changes, but even as far as her the role itself goes. There's lots of layers to her, which is what was interesting. She was just not one-sided and not just the commandant of this task force and ordering people around. There's a hell of a lot more to Tyagi. And it's something that I've never ever done before. In my 26-year career, people have not seen me like this. Iske baad to log definitely are going to be a little bit more scared of Suchi. Good. We should Jitendra, आप बताओ, आपको वो होना the antagonist, but कह भी नहीं सकते. I mean, you are justifying the means to the end. So, what was it about Betal and your character that really, was the inspiration? Betal was altogether a fantastic experience. मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं अब तक, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. It's the kind of character that Mudhalwan is. I haven't done any character till date like Mudhalwan, and I don't wish to do it again, because वो एक बार हो गया और वो उन लोगों की बदौलत हुआ है. दो मेरे जो डायरेक्टर्स हैं और ये बहुत प्यारे मेरे सारे को आर्टिस्ट हैं, तो वो इन लोगों की बदौलत वो हो गया. बहुत अच्छा एक तो एक्सपीरियंस ये रहा कि जिस प्रकार की ये इसको बनाया गया है, जिस स्केल पे बनाया गया है, जिस जगह बनाया गया है, जिस तरीके का इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन है, इसका एक इसमें जो टैलेंट नज़र आता है, भले वो एक्टर्स हों, भले वो टेक्नीशियंस हों, या वो स्क्रिप्ट हो, ये बहुत अलग तरीके का है. अब तक जिन लोगों ने जो काम किए हैं उससे हट के काम उनको इसमें मिला है, हर एक आदमी को, भले वो विनीत हो, भले वो सुचि हो, आना हो, मैं हूँ. और अब तक के ऐसी सीरीज अपने भारत में नहीं आई. अपने देश की ये एक बहुत अलग तरीके का, मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा फ्रॉम द टीम नेटफ्लिक्स एंड रेड चिलीज एंड ऑफ कोर्स बास स्क्वाड. ये एक अलग मास्टर स्ट्रोक होगा. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. Talking about the Bass Squad के, विनीत एक बात बताओ, मुक्काबाज की ट्रेनिंग ज़्यादा टफ थी क्या? बास स्क्वाड के वन ऑफ द लीडिंग ऑफिसर्स, उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा टफ थी? मुक्काबाज की ट्रेनिंग बहुत ही अलग थी पूजा. That was like endless. यहाँ ये पता था कि हाँ इतने दिन हम लोगों की ट्रेनिंग है, बट हाँ हर ट्रेनिंग का अपना अलग एक मज़ा होता है. यहाँ कुछ अलग सीखने के लिए मिला. जैसे एम्बुश करते हैं तो ग्रुप के साथ अगर हमें अटैक करना है, एम्बुश करना है, तो ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होगी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल बिग गन्स, हाउ यू आर गोइंग टू फाइट विद द स्मॉल गन्स, एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज नाइफ इन क्लोज फाइट एंड ऑल. So all these things are very different from Mukkabaz training. And here, because of that workshop, we all actors, we came so close. और वो bonding कहीं ना कहीं screen पे दिखेगी. Awesome. For sure. I'm sure about that as well. And what is this fascination that everyone has with the other, zombies and ghosts? And did anyone have a supernatural experience? बोलते कि जैसे अगर ऐसे topics touch करो, कुछ ना कुछ होता है. So anything interesting? For us, for me, what was interesting is... Sorry. Please continue. मैं छोटा सा आंसर दे रहा हूँ. मैंने बहुत कोशिश की है कि घोस्ट से मेरी कभी मुलाकात हो जाए, और मैं जहाँ भी शूट करने जाता हूँ, अगर कोई लोकेशन है जो हॉन्टेड है, मैं वहाँ अकेले घूमने की कोशिश करता हूँ. बेताल सुन रहा है तुम्हारी बात. Yes, I would love to meet him. Betal is here. He's here. I just told him. Yeah, for me, what was really interesting was the fact that we shot at this location called the haunted house in Khandala, which is the barracks that you see in the show. And the way it looks is just really, really eerie and scary. And the funny thing is, for me,
after that, there was something about that place while we were shooting, which I did just like, damn, I don't want to like hang around here, but we had to shoot. It was a night shoot. But I left for Bombay at 3:30 in the morning with one of the special effects guys. And we were driving the car. It was raining. And he turned around and he said, Suchitra, you do realize that this place is actually haunted. No, I froze. I absolutely froze. And I was like, what? And sure enough, we looked up YouTube and it actually is haunted. There are stories about it from the British era, which is a connection with our show as well. Oh my God. That was really eerie. Yeah, that was really eerie. आहाना का एक्सपीरियंस है उस लोकेशन का कुछ? हाँ, बताओ। तो बेसिकली हम लोग का एक सीन चल रहा था और हम लोग नाइट शिफ्ट कर रहे थे एंड हमारे पूरे स्क्वाड में मैं अकेली लड़की थी। तो आई थिंक द बॉयज डिडंट वांट टू लू ब्रेक एंड आई वांटेड टू लू ब्रेक रियली बैड। और हम लोग का सीन चल रहा था, मैं हर किसी शॉट में मतलब पैट्रिक वाज लाइक अच्छा इस शॉट में आल्सो वी नीड आहाना फॉर दिस शॉट, बैक का शॉट है ये वो। मैंने कहा यार अब तो मुझे लू जाने दो यार, इट्स बीन लाइक सो लॉन्ग आई बीन कंट्रोलिंग इट। तो आई रिमेंबर वैनिटी थोड़ी मतलब इट वाज पार्क्ड एट अ डिस्टेंस। तो मैंने पैट्रिक को बोला, मैंने कहा पैट्रिक आई जस्ट कम बैक, लेट मी क्विकली गो टू द लू एंड कम बैक। तो उसने बोला ठीक है। एंड मैंने चलना शुरू किया और वो पूरी पथरीली जगह एंड दैट प्लेस इज एक्चुअली हॉन्टेड। उससे पहले हमको सब लोगों ने कहानियां बता दी थी कि भाई इधर भूत है, इधर ये है फलाना। अब आप सोचिए 3 बजे रात को, बहुत अंधेरा, चांदनी रात। अभी इससे ज्यादा और एलिमेंट्स क्या चाहिए किसी के फटने के लिए। तो वो 10 मिनट की शूट क्या कर रहे हैं? बेताल। 1 मिनट में शूट कर रहे हैं 100। मैंने कहा भैया मुझे असली बेताल से नहीं मिलता। मैं इतनी जोर से भाग के गई हूँ एंड आई थिंक आई मस्ट हैव paced the longest. I was like, oh God, like thank God I'm inside the vanity. But it was really funny to shoot in that location. Actually, Please ask Jeetu about ghosts, please. जीतू बताइए। मुझे बहुत डर लगता जीतू है। का कुछ अलग है। जीतू की अप्रोच घोस्ट के लिए बहुत अलग है। नहीं, जीतू को मुझे बहुत डर लगता है। मैं कभी ये हॉरर शोज वगैरह, मैं ये पहला हॉरर शो देखूंगा। नहीं, मैं ये पहला हॉरर शो देखूंगा क्योंकि मैंने इसमें काम किया है। मैं अगर इसमें काम नहीं करता तो ये मैं नहीं देखता। नेटफ्लिक्स वाले मेरे घर पे मुझे लॉकडाउन में भी मारने के लिए लोग भेजेंगे, लेकिन हॉरर शो से मेरे को डर लगता है। तो मेरे को कौन से वाले भूत तेरे को अंदर वैसे रख देंगे कहीं पे मेंटल पीस पे। मेरे को कौन सा वाला भूत पसंद है? मेरे को छोटा चेतन अपन हाँ पहला 3D फिल्म आया था, अपन चश्मे लेके। वैसा छोटा चेतन, वो वाला भूत, चमत्कार वाला नसीर भाई वाला भूत है ना, जो हेल्प करे लोगों को, जो अच्छे। तो सब आप विक्रम बने हुए बेताल को डील करने में ना। नहीं बेताल के ये यहाँ देखो, यहाँ का जो बेताल है ना, ये किस हद तक जाता है। अगर आपने 2 ट्रेलर रिलीज हुए हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेलर है जिसमें आपने देखा होगा इंटरनेशनल ट्रेलर में कि विनीत लास्ट शॉट विनीत का है, और विनीत जिस प्रकार से उसकी आवाज चेंज हुई है और जो लुक चेंज हुआ, अगर आपने वो देखा होगा तो तब आपको पता चला होगा ये बहुत भयानक है। ये कोई मतलब हम लोग हंसी खुशी में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो हॉरर काइंड ऑफ शो नहीं है। ये इतना कुछ ना, मतलब क्या कहते हैं उसे हिंदी में, क्या शब्द है वो, ईरी किस्म का, मतलब वो ना, हाँ तो हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन एनीवे आप समझ गई। तो ऐसा है। बट मैं वैसे भूतों में बिलीव, मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ जो सच में बेताल था ना, बहुत बड़ा बेताल, किंग बेताल, तो वो जब आया था ना, एक तो अच्छी बात थी ना, वो हमसे बात करें ना हम उससे बात करें। हाँ, वो अपना चुपचाप बैठा रहता था, हम अपने चुपचाप बैठे रहते। मैं तो गया भी नहीं बात करने को। वो रिवील मत करो, वो अभी रिवील मत करो जीतू। नहीं मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बात ही नहीं करता था। ये जो प्रेताज वीताज बने हुए थे ना भाई, काय को जाके बात करना उन एक तो ठीक है, पता है अंदर कलाकार है, लेकिन क्यों जाना है अपने को? पता है ये शूटिंग से जब घर आता था ना, तो रात में ना कुछ चार्ली चैपलिन देखो, ये देखो। मैं कभी ये बात नहीं की, आज पहली बार बोल रहा हूँ। देखो ऐसा छोड़ना, तो इमेज छोड़ यार वो इमेज। और ना जो बीमार पड़ता हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मुझे ऐसा लगता था यार क्या हो रहा है अपने साथ।
ये शायद इसकी वजह से हो रहा है, ऐसे ख्याल आते थे। बहुत लोगों का लेकिन मानना है ऐसा। लेकिन Yeah, जब no, चेक we did think चेक when all this was happening ना कि बेताल ने जरूर कुछ किया है यार to this shoot या when everyone fell ill वो and भी yeah. चला सेट पे But याद है shoot was- जो स्पॉटलाइट थी सुचि, हम लोगों हाँ। का जो सीन था, जब Yeah. सब कुछ ठीक रहता था, जब एक्शन बोलते थे तो फैन चलना शुरू होता था अपने आप, Yeah. और एग्जैक्टली वहां आके रुकता था जहां हमें नहीं चाहिए। Yeah, it's Cut. true. It's true. Yes. कट, उसके Yes. बाद फिर फैन को रोका जाता था, एवरीबॉडी बाप रे, Yeah. फैन को फिक्स कर दिया पूजा, सब कुछ नॉर्मल, साइलेंस, एक्शन, फैन चलना शुरू होता था। Again, Yes. हमें नहीं चाहिए। God, yeah. Hats off to you, नहीं, Prakash. yeah. That's And, But tell me honestly और हम now, लोग- I mean, जी, हम लोग आप क्या कह रहे जो थे? हमारे फादर ऑफ बेताल हैं, हम लोगों के जो फादर ऑफ बेताल हैं, हमारे डायरेक्टर, मैं मुड़ के देखता था, फादर व्हाट इज हैपनिंग, पैट्रिक हम जो डायरेक्टर हैं, और निखिल महाजन, दोनों ऐसे बालक के जैसे हंसते थे, वी कांट डू इट एनीथिंग। but honestly now tell me, like, thanks to all the OTT platform and the content that you're giving, that we are surviving this lockdown, do you as actors feel that the narratives will change post lockdown, how we see our stories, the kind of narratives that will come? Do you think there would be a change? I think that's already I hope, happening मैं right now. उम्मीद करता हूँ। And- But that I think is Yeah, already continue, happening. continue, You know, it's in process. I mean, वो थोड़ा it's starting. It's a slow process, but I think it will pick up. Also, I feel. I mean, कल मैं इसके बारे में ही सोच रही थी. मैंने कहा कि यार हम लोग, और विनीत ने भी कहा, जीतू ने भी कहा, you know, हम लोग जब से बच्चे होते हैं तो हम लोग कहानियां ही सुनते हैं. I think Indians love stories. We are good storytellers. हम लोग जब you know, even when we are feeding children, हम लोग उनको कोई कहानी सुना देते हैं, so there's like more attention. So small things. So I just feel like we're such good storytellers. We have so many stories. Even हमारी रामायण, महाभारत, हमारी जितनी, हमारे एक तो इतने सारे भगवान हैं और सबसे अटैच्ड एक स्टोरी होती है. सो आई रियली फील दैट इतनी सारी स्टोरीज हम लोग पहले से सुनते आए हैं. हम लोग को स्टोरीज बनाने का, स्टोरीज बोलने का इतना शौक है. So that storytelling का narrative is changing now. Visuals are changing. And I somewhere feel that Betal is definitely going to be a historical one. Because इसकी वजह से, you know, in the horror, thriller, action, drama, there's so much packed into this Yeah. show that True. it's going to really be a different narrative, and I really think it's going to set a standard. I also mean post-COVID, you know, because life as the new normal, this is the new normal. Do you think those will Yeah. impact stories and content creators, as you know, each one of you is too? I think frankly, they will impact. In the first place, how are we going to shoot? That's one thing, you know, No intimate for the new scenes, I things. heard. Blocking technique. Yeah, absolutely. So that's going to be a big change. But what's interesting is that there is a bigger audience now because people are sitting at home, you know, for the OTT platforms, you know, so you know that something that you put out there is definitely going to get eyeballs, frankly. So that's one big advantage for content makers per se. And for actors, yeah, it is it's a bit of a thought as to how it's all going to go forward. But I, for one, you know, I refuse to say that line, this is the new normal. I do not believe it. It's not going to be the new normal. This is going to go back to eventually. I refuse to believe that this is the new normal. Vinit, आप क्या कहना Let's stay चाहते हैं? positive. Let's stay positive. I know, but what do Yeah. you think as an actor and what you're seeing around you? मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है थोड़ी बेहतर चीज़ों की तरफ बढ़ें, और लोग कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ कर रहे हैं. और लॉकडाउन में जो मैंने फील किया, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है कि हम चाहे कहीं भी हैं, हम सारे कनेक्टेड हैं. सी समथिंग स्टार्टेड इन अ कंट्री एंड नाउ इट्स एवरीवेयर. हमें ये लगता है कि वो वहाँ है, वो कोई और है, बट नहीं, हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और जिस चेन से कनेक्टेड हैं वो चेन दिखती नहीं है. तो मुझे लगता है लोग इस चीज़ को काफ़ी डीपली इस चीज़ को इस बार महसूस कर रहे हैं. एंड मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, पहले से ज़्यादा बेहतर होंगी, और ये हम सबको ही करना है. अपने आसपास छोटी छोटी कोशिश करेंगे तो बड़ा बदलाव आ सकता है. So how has the lockdown और ये treated हर you all? फील्ड, या
But how has it treated you all Lockdown- these like 60 days, all of you See, Pooja- living in and out of the suitcase, shoots, and Pooja- suddenly there is Yeah. Sannata. या पूजा ऑनेस्टली एज एन एक्टर मैंने ऐसी बहुत सारी मतलब पर्सनल अगर मैं बात करूं तो लंबे समय तक एक्टर्स के पास काम नहीं होता है, वो वक्त मैंने भी देखा है. तो इट्स लाइक 10 years देयर इज हार्डली कभी 3-4 महीने में कोई काम आ गया 1-2 दिन का. तो उसमें कहीं ना कहीं जीने का एक रास्ता निकाल लिया था. वो ये है इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या कमियां हैं उसे इम्प्रूव करो और उसे दूर करो, कुछ नई चीज़ें सीख लो, कुछ बिकॉज सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है. तो वो आदत कहीं ना कहीं थी. तो ये लॉकडाउन में भी वो काम आता है कि लगातार हम लोग शूट कर रहे होते हैं और जब ये हुआ तो एकदम से सारी चीज़ें रुक गई. फॉर फ्यू डेज इट वाज लाइक शॉक कि ये क्या होगा, कितना फैलेगा, लोगों के ऊपर इसका कितना गहरा असर पड़ने वाला है. एंड बेशक आप अपने जानने वालों के लिए परेशान तो होते हैं. तो बट धीरे धीरे आफ्टर फ्यू डेज चीज़ें कहीं ना कहीं आप अडॉप्ट कर लेते हैं. तो वापस से वही इंट्रोस्पेक्शन, कुछ पढ़ना और नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी सीरीज मैंने नहीं देखी थी वो देखा, कुछ लिखना चालू है. तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, पूरा दिन निकल जाता है. और डोमेस्टिक जो वर्क हैं वो तो सबको करने हैं. तभी सीख रहे हैं कि झाड़ू लगाते समय पीछे से झाड़ू लगाई जाती है, पोछा लगाते समय आगे से उल्टा लगाओ. ये सब सीखा है. आप सब आपने कुछ revelations that have come to you yet? Yeah. Sorry? Any revelations this lockdown has revealed to you that you have discovered? Oh my God! For me, I've kind of, for last few years at least, I've been out of the house a hell of a lot shooting. So what's been happening during the days over here now, I'm finally getting to see. And I have a 12-year-old daughter who's growing up really fast. And between her and my husband, and what all is going on over there, and the growing up process per se, I'm getting to see all of that firsthand, which I was not really part and parcel of. And for me, what was really nice is the therapeutic thing of cooking. I love that, and I'm getting to do a hell of a lot more of that during lockdown. बस जाते जाते आना जितेंद्र जी आप भी बताइए कि कैसा रहा ये. जी मैं यही इतनी एक बात कहना चाहूँगा कि मैं इस लॉकडाउन के बीच दरमियान में एक चीज़ बहुत दिल से मुझे नज़र आई है कि मैं जब कुछ लेने के लिए बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि उन पेड़ों को कोई पानी नहीं डाल रहा है जो पेड़ रास्ते पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो हरे हैं. उन पेड़ों की कोई देखभाल नहीं कर रहा है सिवाय के पंछियों के या जो भी उनके साथी हैं. और रास्ते पे ऐसे ऐसे पंछी आ रहे हैं कि जिनको मैंने सिर्फ किताबों में देखा है. मेरे यहाँ मेरे ये खिड़की में किंगफिशर आया था परसों, मतलब बोतल नहीं, पंछी वो आया था. और तो मैं पागल हो गया. मैं और हम लोग को आज आदत पड़ी है ना, कोई भी चीज़ देख लो पहले फ़ोटो निकाल लो. मैंने कहा छोड़ो यार, मैं देखता रहा उसको, ये कितना सुंदर है यार. तो मेरे ध्यान में आया है, नज़रिए में कि भाई नेचर को आपकी ज़रूरत नहीं है. इंसान के बगैर नेचर अपने आप रहेगा. आप अभी इंसान हो, आप अपनी सोचो. आपके नेचर में अगर बदलाव आएगा तो नेचर के साथ रहोगे तो रहोगे, वरना तो फिर भैया आपने घर बना लिए हैं तो आप अपने घर में रह रहे हो. पंछियों के घर आसमानों में हैं तो वो उड़ रहे हैं. तो आप सोचो आपको कहाँ घर बनाना है, क्या करना है. Lastly, Ahana, you before I wrap up. I mean, almost like summing up everything that the three of them have said, which is kind of true. I feel that, to live, you don't really need too many things. I also feel that, as human beings, ये हम लोग का कलेक्टिव कर्मा है समवेयर. हम लोगों ने कुछ बहुत ही ख़राब कर्म किए होंगे कि हम सब लोग अपने घरों के अंदर ऐसे बंद हैं जू क्रीचर्स की तरह. जिस तरह हम लोगों ने जानवरों को ट्रीट किया है सालों सालों, मुझे लगता है अब हमारी बारी है. आई ऑलवेज फील कि अपनी करनी का आप भरण इसी जन्म में देकर जाएंगे. और हम लोग इतने ज़्यादा, आई थिंक वी बिकम सो सेल्फिश ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड it's not only
you know, it's just all of us together. हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम बड़े अच्छे हैं, एंड आप अपने आप को बड़ा सर्टिफिकेट दे सकते हैं पॉजिटिविटी का या ये वो फलाना टिमकाना, बट मुझे लगता है कि somewhere we have become selfish. We don't think about others. We don't think about nature. We don't think about anything. तो एक जरा रुक कर भगवान को 2 टाइम थैंक यू बोलना कि भाई हम जिंदा हैं. I think that's the biggest change that one should bring in themselves. और दूसरों का सोचिए, अपना मत सोचिए. अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि somewhere this is just going to continue for all of us. So Yeah. I just want to have मैंने gratitude अगली में towards everything that I have life. पूजा, मैंने अगली का जो टाइटल ट्रैक था वो लिखा था, तो उसकी 1-2 लाइंस याद आती है. मुझे लगता है वो सोच को बदलना चाहिए. उसमें सिर्फ 2 लाइंस हैं, मजेदार सी हैं. मीठी मीठी दी टॉफी, मीठी मीठी दी, जड़ सबकी मैं काट के बोलूं ब्रो टेक इट इजी. ये एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है हर किसी को. Absolutely, and thank you so much, the Betal Busters. Thank you. May you Thank you. soar high. All the very best. Thanks, Surya. Thanks so Thank much. you. Bye. Thank you, Pooja. Stay safe. Stay safe. Bye. You too. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you.